ہماری تاریخ کی کتابوں میں ایک شخص کو بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ 1498 میں واسکو ڈی گاما نامی ایک عظیم پرتگالی کھوجی یعنی ایکسپلورر نے یورپ سے انڈیا کا سمندری راستہ دریافت کیا۔ اسے ایک بہادر ملاح کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے وہ اوراق جو آپ سے چھپائے گئے ان پر پانی نہیں مسلمانوں کا خون گرا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی ہیرو نہیں تھا، وہ ایک دہشت گرد تھا جس نے بحر ہند کے نیلے پانیوں کو حاجیوں کے خون سے سرخ کر دیا تھا۔ آج ہم تاریخ کے اس خونی سمندر میں اتریں گے اور آپ کو اس مسلمان ملکہ کی کہانی سنائیں گے جس نے اکیلے دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت کے غرور کو سمندر کی لہروں میں غرق کر دیا تھا۔ یہ 16ویں صدی کا آغاز تھا۔ پرتگالی سلطنت سمندروں کی بے تاج بادشاہ بن چکی تھی۔ ان کا مقصد صرف تجارت نہیں تھا، ان کا مقصد کروسیڈ یعنی صلیبی جنگ کو سمندروں تک پھیلانا تھا۔ سال 1502 عیسوی ایک بحری جہاز جس کا نام میری تھا، مکہ مکرمہ سے حج ادا کرنے کے بعد ہندوستان کیلیکٹ واپس لوٹ رہا تھا۔ اس جہاز میں 400 مسلمان حاجی سوار تھے، جن میں عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل تھے۔ رستے میں واسکو ڈی گاما کے جنگی بیڑے نے اس نہتھے جہاز کو گھیر لیا۔ مسلمانوں نے اپنا سارا مال و دولت فدیے کے طور پر پیش کیا کہ ہمیں جانے دو، لیکن واسکو ڈی گاما کی درندگی دیکھیے۔ اس نے مال لوٹنے کے بعد حاجیوں کو جہاز کے اندر بند کیا، باہر سے تالے لگائے اور جہاز کو آگ لگا دی۔ تاریخ دان گاسپر کوریا لکھتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کے لیے کھڑکیوں سے باہر دکھاتی رہیں، مگر ان ظالموں کو رحم نہ آیا۔ 400 حاجی سمندر کے بیچوں بیچ زندہ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ واسکو ڈی گاما کے بعد ایک اور پرتگالی ظالم الفونسو ڈی البوکرک آیا۔ اس شخص کا ارادہ صرف حاجیوں کو مارنا نہیں تھا، اس کا منصوبہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کچھ عیسائیوں نے زمین کے راستے سرنگ کھود کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، جسے سلطان نور الدین زنگی نے ناکام بنایا۔ لیکن اب یہ حملہ زمین سے نہیں سمندر سے ہونے والا تھا۔ البوکرک نے پرتگال کے بادشاہ کو باقاعدہ خط لکھا جو آج بھی پرتگالی آرکائیوز میں محفوظ ہے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ بحیرہ احمر میں جنگی جہاز اتارے جائیں اور مدینہ پر حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نعوذ باللہ نکال کر یورپ لے جایا جائے تاکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے بلیک میل کیا جا سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب امت مسلمہ بکھر چکی تھی، اندلس یعنی اسپین ہاتھ سے نکل چکا تھا، مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ سمندروں پر پرتگالیوں کا خوف اتنا تھا کہ مسلمانوں نے حج کے لیے جانا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کا راستہ روک سکے، کوئی ایسا بحری بیڑا نہیں تھا جو ان کی توپوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب زمین والے ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں تو آسمان والا کسی ایسے شخص کو کھڑا کرتا ہے جس کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس بار اللہ نے اسلام کی عزت بچانے کے لیے کسی بادشاہ یا جرنیل کو نہیں بلکہ ایک عورت کو چنا، ایک ایسی عورت جو سمندروں کی دہشت بننے والی تھی۔ اس عظیم مسلمان ملکہ کی کہانی ایک تباہی سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے 1492 عیسوی یعنی 1492 کے اندلس میں چلتے ہیں۔ یہ وہ سال تھا جب 800 سالہ شاندار اسلامی حکومت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کا آخری قلعہ غرناطہ عیسائی بادشاہ
फर्डिनेंड और मलिका इजाबेला के सामने घुटने टेक चुका था। गलियों में मुसलमानों का खून बह रहा था। मसाजिद को गिरजा घरों में बदला जा रहा था। ये एक नस्ली कशी थी। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो अपना मजहब छोड़कर ईसाई बन जाएं, या फिर अपना वतन, अपनी जायदादें छोड़कर हिजरत कर जाएं। उन्हीं मुहाजिरीन के काफिलों में एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका असली नाम आयशा था, मगर दुनिया उसे सैयदा अल हुर्रा के नाम से जानने वाली थी। सैयदा का ताल्लुक गरनाता के एक इंतहाई मुअज्जिज और पढ़े लिखे खानदान बनु राशिद से था, जिन्होंने इज्जत बचाने के लिए अपना आली शान महल, अपनी जागीरें और सदियों की यादें वहीं छोड़ दी और समंदर पार करके मुराकश के शहर शफशावन में पनाह ली। जरा उस बच्ची के दिल का हाल सोचिए, जो समंदर की लहरों पर खड़ी अपने जलते हुए घर को देख रही थी। उसने हिजरत तो कर ली, लेकिन उसने ये जुल्म कभी भुलाया नहीं। हस्पानवी और पुर्तगाली सिर्फ स्पेन तक नहीं रुके, उन्होंने मुसलमानों का पीछा किया और शुमाली अफ्रीका के साहिलों पर भी हमले शुरू कर दिए। समंदर का हर रास्ता मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन सैयदा उल हुर्रा कोई आम लड़की नहीं थी। उसने कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेगी और इन समंदरों को मुसलमानों के लिए दोबारा महफूज बनाएगी। वक्त गुजरा, सैयदा बड़ी हुई। इसकी शादी ततवान के गवर्नर अल मंदरी से हुई। ये शहर अंदलुस से आने वाले मुहाजिरीन का मरकज था। सैयदा सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो एक ज़हीन सफारतकार और एक अस्करी दिमाग रखने वाली औरत थी। जब 1515 में उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो आवाम ने किसी मर्द को नहीं बल्कि सैयदा को अपना सिपा सालार और रहबर चुन लिया, क्योंकि वो जानते थे कि सैयदा की सलाहियतें ही उस वक्त उनकी मदद कर सकती हैं। ये तारीख इस्लाम का एक इंतहाई गैर मामूली वाकया था। उसे अल हुर्रा का लक़ब दिया गया क्योंकि उसने किसी के सामने झुकना कबूल नहीं किया था। अब वो सिर्फ एक हिजरत करने वाली लड़की नहीं थी, वो ततवान की मलका थी। लेकिन उसका असल हदफ तख्त पर बैठना नहीं था, उसका हदफ वो समंदर था जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। सैयदा जानती थी कि उसका छोटा सा शहर पुर्तगाल और स्पेन के अजीमुशान जंगी जहाजों गैलियंस का मुकाबला सीधी जंग में नहीं कर सकता। उसे एक नई जंगी हिकमत अमली चाहिए थी। उसने अपनी दौलत से तेज रफ्तार और छोटे जंगी जहाज बनवाए। उसने अपने हमवतन महाजिरीन को, जो स्पेन के जुल्म का शिकार थे, एक बहरी फौज में मुनज्जम किया। उसका मंसूबा सादा लेकिन खतरनाक था। दुश्मन के बड़े जहाजों से मत लड़ो, उनकी तिजारती शहरक काट दो। सैयदा की बहरिया ने बहिरा रूम और बहरे ओकियानूस में हस्पानवी और पुर्तगाली जहाजों पर छापा मार कार्रवाइयां शुरू कर दी। ये जहाज अचानक आते, दुश्मन को लूटते, उनके जहाज तबाह करते और हवा की तरह गायब हो जाते। यूरोप के तख्त हिलने लगे। हस्पानवी दस्तावेजात में आज भी उस मुसलमान मलिका का जिक्र इंतहाई खौफ के साथ मिलता है। वो उसे समंदरों की आफत कहते थे। तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक अकेली औरत ने 2 आलमी सुपर पावर्स स्पेन और पुर्तगाल की नींदें उड़ा दी हों। ये वो वक्त था जब यूरोप की बहरी ताकत दुनिया पर राज कर रही थी, लेकिन बहराए रूम के मगरबी हिस्से में सैयदा अल हर्रा के जहाज मौत का साया बनकर तैरते थे। यूरोपी तारीखदान सैयदा को एक कज़्ज़ाक कहते हैं, लेकिन जरा रुकिए, क्या अपने छीने हुए घरों का बदला लेना और जालिमों के जहाजों को तबाह करना कज़्ज़ाकी है? नहीं, ये तो अपनी बका की जंग थी। सैयदा के जहाज हस्पानवी और पुर्तगाली तजारती बेड़ों पर अचानक हमला करते, वो उनका सोना चांदी लूटती और उनके जहाजों को गर्क कर देती। सबसे बढ़कर वो उन ईसाई जहाजों को निशाना बनाती जिनमें उंदलिस के मुसलमान कैदियों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। सैयदा की बहरिया का सबसे बड़ा हदफ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को
सलीबियों की कैद से छुड़ाना था। जब भी सैयदा के जहाज कोई हिस्पानवी जहाज पकड़ते तो वो ईसाई नवाबों और उमरा को कैदी बना लेती। उसने स्पेन के बादशाह के सामने एक सीधी शर्त रखी, अगर अपने लोग वापस चाहिए तो हमारे कैदियों को रिहा करो और तावान अदा करो। ये कोई आम बात नहीं थी। एक मुसलमान खातून जिसने अपना सब कुछ हिजरत में खो दिया था, अब वो स्पेन और पुर्तगाल जैसी सल्तनतों के साथ बराबरी की सतह पर बैठकर मुज़ाकरात कर रही थीं। हिस्पानवी दस्तावेजात गवाह हैं कि वो सैयदा को ला लीदरेजा के नाम से पुकारते थे और उनकी हुकूमत सैयदा से बराह रास्त डील करने पर मजबूर थी। लेकिन सैयदा अल हुर्रा बहुत दूर अंदेश थी। वो जानती थी कि उसका शहर तितवान तन्हा इतनी बड़ी जंग तवील अरसे तक नहीं लड़ सकता। उसे एक ऐसे इत्तेहादी की जरूरत थी जिसके नाम से ही समंदरों का पानी कांपता हो, और वो नाम था औरूज रईस, जिसे दुनिया बारबरोसा के नाम से जानती थी। ये उस्मानी खिलाफत का वो लेजेंडरी एडमिरल था जिसने बहरा रूम के मशरिकी हिस्से में सलीबियों का जीना हराम कर रखा था। ये तारीख़ इस्लाम का एक जबरदस्त गठजोड़ था, मगरिब की मलिका और मशरिक के शेर की मुलाकात। दोनों ने समंदर को दो हिस्सों में बांट लिया। बारबरोसा ने कहा, मशरिक के समंदरों की हिफाजत मेरे जिम्मे और मगरिब यानी अलजजायर से मराकिश तक की कमान सैयदा अल हुर्रा के पास। अब मुसलमानों के दिफा की लकीर नाकाबिले तस्खीर हो चुकी थी। इस अजीम इत्तेहाद का मकसद सिर्फ बहरी तिजारत लूटना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इस्लामी और दिफाई मकसद छुपा था। याद करें, वीडियो के आगाज में वास्को डी गामा का हाजियों को जलाना और अल्बुकर्क का वो नापाक मंसूबा कि वो बहीरा अहमर से होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करेगा। पुर्तगाली सल्तनत इन समंदरी रास्तों पर कब्जा करना चाहती थी ताकि मुसलमानों के लिए हज का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो हिजाज मुकद्दस का मुहासरा करना चाहते थे, लेकिन सैयदा अल हुर्रा के हमलों ने पुर्तगाल और स्पेन को अपने ही साहिलों पर इतना उलझा दिया कि उन्हें अपनी आधी बहरिया बहरे हिंद से वापस बहरे रूम की तरफ बुलानी पड़ी ताकि वो सैयदा के हमलों से बच सकें। सैयदा अल हुर्रा ने तकरीबन 30 साल तक तत्वान और मगरिबी समंदरों पर कामयाबी से हुकूमत की। इसके दौर में शहर ने बेपनाह तरक्की की और वो महाजरीन का एक मजबूत तरीन कला बन गया। लेकिन तारीख का एक कड़वा सच ये भी है कि अक्सर अजीम हस्तियों का सवाल अपनों ही के हाथों होता है। 1542 ईस्वी में सैयदा अल हुर्रा को उसके अपने दामाद ने एक बगावत के जरिए तख्त से हटा दिया। इसके बाद इस अजीम मलका ने अपनी बकिया जिंदगी खामोशी और गुमनामी में गुजारी, यहां तक कि 1561 के करीब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये इसकी शिकस्त थी? हरगिज नहीं। सैयदा मर गई, लेकिन वो जंग जीत चुकी थी। पुर्तगाली और हिस्पानवी बहरिया जो पूरी दुनिया को निगलने निकली थीं, वो सैयदा के हमलों से इतना खौफसदा और कमजोर हो चुकी थीं कि उनका वो नापाक ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न हो सका। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का वो खौफनाक मंसूबा कि वो बहरा अहमर उबूर करके मदीना पर हमला करेगा और नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर चुराएगा, वो मंसूबा समंदर की उन्हीं लहरों में गर्क हो गया। हाजियों के काफिले जो वास्को डी गामा की जरिंदगी का शिकार हुए थे, अब वो बहरे हिंद और बहरा अहमर से बगैरियत मक्का और मदीना पहुंचने लगे। रास्ते महफूज हो चुके थे। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हिफाजत के लिए किसी फरते जज्बात में बिफरे हुए हुजूम को नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत को चुना जिसने अपना घर बार, अपना बचपन, सब कुछ हिजरत में खो दिया था। एक मुहाजिर लड़की जो अंदलुस की राख से उठी और समंदरों की मलिका बन गई।
یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف انتظار کرنے یا معجزوں کی امید لگانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام عمل اور حکمت عملی کا نام ہے۔ جب امت مسلمہ کمزور تھی تو اللہ نے ایک ایسی عورت کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی بحری سلطنتوں کا غرور توڑا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ آج ہماری تاریخ کی کتابیں واسکو ڈی گاما جیسے ظالموں کو تو ہیرو بنا کر پیش کرتی ہیں، لیکن سیدہ الحرہ جیسی ہستیوں کا ذکر صفحات میں کہیں دب کر رہ گیا ہے۔ اگر اس سمندر کی ملکہ کی بہادری نے آپ کے دل میں بھی فخر اور ایمان کی چنگاری روشن کی ہے تو کامنٹ میں اللہ اکبر یا سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو ہر اس مسلمان تک پہنچائیں جو اپنی تاریخ کے ان شاندار اور آگ سے نا واقف ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی طرح دین کا محافظ اور بہادر بنائے، آمین۔